Okay, War of Independence. And then after War of Independence, there was a point of Urdu-Hindi controversy, 1863 to 1867. Then there was a point of establishment of All India Congress, 1885. Then we have partition of Bengal, 19. We have Simla Deputation, 1906. Then we have establishment of All India Muslim League in 1906. And then we discussed the Minto-Morley constitutional reforms of 1909. So इन पॉइंट्स तक हमने डिस्कशन कर ली थी। जितने पॉइंट्स मैंने आप लोगों के सामने ऊपर लिखे हुए हैं, ये सब के सब एग्जाम में 1 नंबर के लिए आएंगे, एक्सेप्ट दिस सिमिलर डेपुटेशन. Similar deputation could be asked for the 2 questions, 2 marks. 2 marks के लिए आपसे पूछा जा सकता है सिमिलर डेपुटेशन एग्जाम के अंदर. बाकी जितने हमने को 5, 7, 8 पॉइंट पीछे देखे हैं, मोहम्मद बिन कासिम, वॉर ऑफ प्लासी, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस, पार्टीशन ऑफ बंगाल, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग एंड मिंटो मॉर्ले कॉन्स्टिट्यूशन. So these all points are for 1 marks. ठीक है. ओके, सो मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं. 1 नंबर के लिए आपके पास ऐड हो 1913 1 नंबर के लिए आपके पास ऐड होगा, मैं आगे लिख देता हूँ फॉर 1 मार्क. I would just ask when Qaid-e-Azam joined All India Muslim League, so you will say 1913. So here in our timeline, now we will start seeing Qaid-e-Azam as one of the politicians. एक politician की हैसियत से हम लोग अपनी timeline के अंदर इनको देखा करेंगे अब आगे, और हम देखेंगे कि how Qaid-e-Azam became the front leader of Pakistan, of Muslims in subcontinent. तो Qaid-e-Azam ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग को 1913 में. तो Qaid-e-Azam के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली अगर हम देखें तो बताने की जरूरत नहीं है. He was born in Karachi, then he went to Europe for the higher studies when he was maybe mere 18 years. तो अपने further studies के लिए वो गए Europe, and he was studying law over there, and he was studying in Lincoln's Inn, one of the very prestigious institutes of England still right now. तो वहाँ पर उन्होंने एडमिशन लिया लिंकन्स इन में, एंड ही completed his bar at law or whatever LLB or something like that, the degree in the law, and then he joined one of the political parties of England, and the name of that politician who was running that political party was Dada Bhai Nauroji. So Dada Bhai Nauroji was Indian, and he was migrated to the England at that time, and he was running a political party. So being a politician, Qaid-e-Azam always felt that he has some germs, he has some, whatever you can say, that is some instincts to be a politician. तो पॉलिटिशियन बनने की इंस्टिंक्ट उनके पास हमेशा से थी. सो दैट्स व्हाई ही जॉइंड द पॉलिटिकल पार्टी ऑफ दादा भाई नूरोजी इन इंग्लैंड, एंड व्हेन ही रिटर्न टू सब कॉन्टिनेंट, जब वापस आए गालिबन 1906 के अंदर, 1906 में जब वापस आए, तो ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ प्रोफेशनल लॉयर. एक लॉयर के तौर पर उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया, बट साइड बाय साइड ही वाज आल्सो पॉलिटिशियन. सो ही जॉइंड द All India Congress. Initially, there was only one political party, which was a big political party. So Qaid-e-Azam initially joined All India Congress. And later on, when he observed that there is another political party which is for the Muslims, and the other political party is All India Muslim League, so he also joined the Muslim League in 1913. So he was, at that time in 1913,
he was the member of both the political parties, the Congress and the All India Muslim League. So it was the brief overview of Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, which is very much incomplete, but still. So in 1913, we have added one more point in our timeline, Qaid-e-Azam's joining Muslim League, whatever you can say that in abbreviation. I used to write it like this in 1913. So the 1913 was the year when Qaid-e-Azam was also seen in the Muslim League in the horizon. And before 1913, he already established himself as a very good lawyer and a very good politician. 1913 से पहले he had already established him. वो पहले ही establish कर चुके थे in subcontinent that he has some current in and he has a very good spark for the politics. जी वो जो मेरे साथ पार्टिसिपेंट थे जो कंट्रीब्यूट करना चाह रहे थे वो किधर गए हैं भाई? इस तरह मुझे लगेगा कि शायद मैं अकेला बोलता जा रहा हूँ, तो आप लोग ना काइंडली ये चीज खुद देखिए. बार-बार म्यूट ही जा रहा है इसलिए म्यूट नहीं है. आप लोगों को ना जरा जागना पड़ेगा साथ साथ ताकि मुझे पता चलता रहे कि मेरा लेक्चर प्रॉपर्ली डिलीवर हो रहा है कि नहीं. Yes, sir. ठीक है. सो ज्वाइनिंग ऑफ कायदे-ए-आज़म इन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1913. सो टाइमलाइन के अंदर हमारे पास कायदे-ए-आज़म भी अब नजर आना शुरू हो गया और अब कायदे-ए-आज़म के साथ साथ और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के साथ साथ चलती ये हम आगे चीजें चलती रहेंगी. ओके जी. अनदर पॉइंट फॉर 1 मार्क, 1 नंबर के लिए एग्जाम में आएगा जस्ट स्टार्ट ऑफ, चलिए इसको भी यहाँ लिख लेते हैं, स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 1914 1914 के अंदर वर्ल्ड वॉर 1. व्हाट इज दिस वर्ल्ड वॉर 1? ये वर्ल्ड वॉर क्या चीज है? जी बताइए ये वर्ल्ड वॉर का क्या मतलब है? बच्चे कासिम आप चले किधर जाते हैं? आप अपने आप को अनम्यूट करते हैं और चले जाते हैं. आपने अगर पार्टिसिपेट करना है तो आप कंटिन्यू साथ रहिए ना. ठीक है सर, वो म्यूट ना करूं मैं. ठीक है, अनम्यूट ही रहता हूं. सॉरी, वो सर मैं अनम्यूट करता हूं तो फिर वो आपको फिर दोबारा वो लेना पड़ता है. नहीं आप अनम्यूट ना कीजिए ना. अगर आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं मेरे साथ तो फिर आप अनम्यूट खुद को ना कीजिए. आप म्यूट ही रहें, बस इर्द गिर्द के शोर को, नॉइज को जरा कंट्रोल में रखें और आप अनम्यूट ही मेरे साथ पार्टिसिपेट कीजिए. मुझे कोई मसला नहीं, ओके सारी सर. क्लास ही अनम्यूट हो जाए, जितने मर्जी लोग अनम्यूट हो जाए, लेकिन मसला सिर्फ ये होता है कि वो बैकग्राउंड नॉइज अगर नहीं है आप लोगों के पास तो बेशक सारे अनम्यूट हो जाए, मुझे बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है. ठीक है. तो आप लोग अनम्यूट ना कीजिए, स्पेशली वो लोग जो मेरे साथ पार्टिसिपेट करने के लिए उन्होंने मुझसे परमिशन लिया. बाकी लोग भी हो सकते हैं, जितने मर्जी लोग मतलब अनम्यूट हो जाए, मुझे कोई इशू नहीं है, बस बैकग्राउंड नॉइज को जरा कंट्रोल में रखिएगा. अच्छा जी, स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1. जी वर्ल्ड वॉर 1 क्या चीज है? वर्ल्ड वॉर, जंग अजीम क्या चीज है? कोई आप लोगों के माइंड में आइडिया को पड़ा हो, आपने कुछ थोड़ा बहुत देखा हो, कोई आपने इंग्लिश मूवी देखी हो वर्ल्ड वॉर 1 या वर्ल्ड वॉर 2 के हवाले से, तो आप कुछ चीज बताना चाहते हो एग्जाम में, ये बिल्कुल 1 नंबर के लिए आएगा. आई वुड आस्क के व्हेन वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्टेड, तो आप कहेंगे 1914. तो 1914 के अंदर जंग अजीम हुई. तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ जो कि आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन जरूरी है थोड़ा सा बीइंग Pakistan study student here कि आप लोगों को आइडिया हो कि what was the basic reasons behind that World War One, and what was the main course of that war, and where this war ended, and how we are studying this World War One. Okay, so थोड़ा सा एक मैप आपको मैं बनाने की कोशिश करूंगा. इधर मैंने आपको जैसे बताया था कि देयर वर 7 कॉन्टिनेंट्स इन दिस वर्ल्ड. अगर ये दुनिया है, अगर इसको मैं दुनिया मान लूं जो कि तकरीबन स्फेरिकल है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा डिफरेंट बना दिया, तो इसके अंदर डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं. देयर आर डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स इन दिस वर्ल्ड.
And how many continents? 7, sir. 7. 7 exactly. So there are basically 7 continents. ये है जी फॉर एग्जांपल एशिया, ठीक है, और ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। आप लोगों के पास टेक्नोलॉजी के अंदर मैप्स मौजूद है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है इसलिए। एंड दिस इज द अमेरिका विच इज नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए अगर। द अपर पोर्शन इज कॉल्ड एज द नॉर्थ अमेरिका, द लोअर पोर्शन इज कॉल्ड एज द साउथ अमेरिका। ये इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दें तो अमेरिका यानी शुमाली अमेरिका, और ये बर्रे आजम का नाम है, उस शुमाली अमेरिका के अंदर यूएसए है। यूएसए इज नॉट द नॉर्थ अमेरिका और अमेरिका इज नॉट द यूएसए। बेसिकली जो नॉर्थ अमेरिका है उसके अंदर अमेरिका एक कंट्री मौजूद है। ओके, देन वी हैव अफ्रीका, छोटा सा मैंने आपको अफ्रीका बना दिया है। देन वी हैव अंटार्कटिका, ऊपर बिल्कुल नॉर्थ के अंदर मैंने आपको अंटार्कटिका बना दिया है। लेकिन द इम्पोर्टेंट कॉन्टिनेंट फॉर आवर दिस टूडेज टॉपिक इज द यूरोप। इसको मैंने इसलिए डिफरेंट लाइन के अंदर, डिफरेंट कलर के अंदर मैं आपके सामने बना रहा हूँ। यूरोप, दिस इज द ब्लैक लाइनिंग कॉन्टिनेंट इज यूरोप। यूरोप में कोई 30 एक कंट्री बनते हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता 30 या 31, आप लोग गूगल करके देख लीजिएगा कि देयर आर बेसिकली 30 और 31 कंट्रीज राइट नाउ देयर आर इन यूरोप। अच्छा, अब ये जो जंगे अजीम वर्ल्ड वार 1 है, WW1, वर्ल्ड वार 1, जंगे अजीम अव्वल, बेसिकली ये क्या चीज है? वो ये चीज है कि वी आर इन 1914, हम 1914 के अंदर हैं। दुनिया की उस वक्त जो बड़ी ताकतें थी, जो दुनिया की बड़ी पावर्स थी, बिग पावर्स थी, सुपर पावर्स थी, मोस्ट ऑफ दो सुपर पावर्स वर इन यूरोप। वो यूरोप के अंदर थी। फॉर एग्जांपल जी इंग्लैंड, इंग्लैंड वाज वन ऑफ द सुपर पावर ऑफ दैट इरा। इंग्लैंड दुनिया की सबसे बड़ी उस वक्त ताकत थी। और जैसे मैंने आपको एक पिछले लेक्चर में भी बताया था कि इट वाज यूजुअली कॉल्ड एज कि सन नेवर सेट्स ऑन द टेरिटरी ऑफ इंग्लैंड, कि दुनिया इंग्लैंड की टेरिटरी के ऊपर सूरज कभी गरूब नहीं होता। यानी इसकी इतनी ज्यादा सल्तनत, इतने ज्यादा ममालिक के ऊपर इसका कब्जा था कि दुनिया में अगर एक जगह सूरज गरूब हो रहा है तो दूसरी जगह जहां सूरज निकला हुआ है वो भी कहीं ना कहीं इंग्लैंड की ही अमलदारी में आता है। तो इंग्लैंड वाज वन ऑफ द सुपर पावर्स, बहुत बड़ी पावर। यूके, द ब्रिटिश एम्पायर, the British Empire was even in fact the largest empire in the history of this mankind, जिसने दुनिया के सबसे बड़े इलाकों पर कब्जा किए रखा है। तो बर्तानिया, यूके, इंग्लैंड ये करंटली मौजूद है यूरोप में। ओके, सो देयर वर आल्सो अदर सुपर पावर्स और पावर्स जस्ट लाइक एज फ्रांस, इसको मैंने एफ लिखा है। अनदर पावर वाज जर्मनी, जिसको मैं जी लिखने की कोशिश कर रहा हूं। फिर एक सुपर पावर थी जो कि यूरोप और एशिया दोनों के ऊपर फैली हुई थी रकबे के एतबार से, दैट वाज यूएसएसआर। इसको अगर मैं आपको यहां पर लिख के दूं तो यूएसएसआर, यूएसएसआर का मतलब है यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रशिया। यानी ये जो रशिया करंटली आपको नजर आता है दुनिया में रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क, उस वक्त ये 1914 में इससे भी बड़ा था एंड इट वाज कॉल्ड एज यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रशिया। सोवियत का मतलब होता है रियासतें, सोशलिस्ट का मतलब होता है सोशलिज्म। यानी रशिया की वो मुत्तहिदा रियासतें जहां पर सोशलिज्म मौजूद है, तो उनको मिला के एक मुल्क बनता था जिसका नाम था यूएसएसआर। एंड इट वाज सो ह्यूज, द लार्जेस्ट कंट्री ऑन दिस अर्थ। तकरीबन कुछ 12-14 ममालिक के ऊपर रशिया मिलकर एक रशिया बनता था, जिनमें यूक्रेन, आर्मीनिया, अजरबैजान, तुर्कमानिस्तान, काजाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और ये ताजिकिस्तान और इसके अलावा रशिया। तो 12 एक कंट्रीज मिला के यूएसएसआर बनते थे। सो ये जो आपको कॉन्टिनेंट नजर आ रहा है, जिसको मैंने ब्लैक के अंदर थोड़ा सा शो किया हुआ है, जिसमें इंग्लैंड आपको मैंने बताया एक सुपर पावर है, देन फ्रांस, देन जर्मनी एंड देन यूएसएसआर। So all these countries had remained in war with each other. दोनों ये तमाम यूरोप, स्पेशली द यूरोप, ये जिसको मैं अब सर्कल मजीद करूंगा, ये जो कॉन्टिनेंट है यूरोप का, द यूरोपियन कॉन्टिनेंट हैज ऑब्जर्व्ड सो मैनी वॉर्स, बहुत ज्यादा
वॉर्स देखी हैं यूरोप ने एक दूसरे के साथ। जो यूरोपियन कंट्रीज हैं ये हमेशा से ही एक दूसरे के साथ जंग में शामिल रहते थे, एक दूसरे के खिलाफ जंग करते रहते थे। दुनिया में जितनी ज्यादा खौफनाक और होलनाक जंगें यूरोप ने देखी हैं इतनी किसी और कॉन्टिनेंट में नहीं लड़ी गई जितनी खौफनाक और होलनाक जंगें यूरोपियन कंट्रीज आपस में लड़ी हैं। और वो सिर्फ और सिर्फ उसका मकसद है ताकत और कब्जा, ताकत और कब्जा। जितना मर्जी यूरोप मुसलमानों पर इल्जाम लगाता रहे कि हम लोग तलवार के जोर पर इस्लाम फैला है, या इस्लाम का एक दूसरा जो एक शो है वो तलवार है, ये जंग है, विच इज टोटली रॉन्ग। इस्लाम हैज नेवर एवर टू डू एनीथिंग विद दिस वॉर और द तलवार। जितनी तलवार और जितनी जंग यूरोप ने की है आपस के अंदर इतनी दुनिया में किसी कॉन्टिनेंट ने की। और उसकी सबसे बड़ी मिसालें मैं आपके सामने ये वर्ल्ड वार जा रहा हूँ। तो ये जिसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ एंड सर्कल कर रहा हूँ जिस कॉन्टिनेंट को, दिस कॉन्टिनेंट इज सो मच नटोरियस, बहुत ज्यादा बदनाम रहा है जंगों के हवाले से। और स्पेशली द कंट्रीज लाइक इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, यूएसएसआर, these countries had remained war with each other till 1945। 1945 तक ये आपस में जंगें ऐसे करते रहे हैं, खूनख्वार जंगें, खूनी जंगें, द ब्लडीएस्ट वॉर्स। तो इंग्लैंड का कब्जा है जी दुनिया के ऊपर, कुछ इलाकों पर फ्रांस का कब्जा है, कुछ इलाकों पर जर्मनी का कब्जा है, कुछ इलाकों पर यूएसएसआर का कब्जा है। तो ये जो बड़े कंट्रीज हैं ये आपस में जंगें करते रहते थे ताकि कब्जे छीन लें एक दूसरे से और सुपर पावर्स बन जाए हम लोग। यूएसएसआर की हमेशा से कोशिश रही है कि वो फ्रांस के इलाकों को कब्जे में कर ले, फ्रांस की हमेशा से कोशिश रही है कि वो जर्मनी के इलाकों पर कब्जा कर ले, और जर्मनी की हमेशा से कोशिश रही है कि वो इंग्लैंड के इलाकों पर कब्जा कर ले। ठीक है। सो दिस वाज बेसिकली द मैप ऑफ वॉर कि ये यूरोप, फ्रांस और जर्मनी आपस में जंगें करते रहे हैं, आपस में लड़ते रहे हैं। सो इसी तरह की एक जंग उन्होंने की वर्ल्ड वार वन जो कहलाती है 1914 के अंदर, जब जर्मनी ने अटैक कर दिया इंग्लैंड के इलाकों के ऊपर जो इंग्लैंड के जेर तसल्लुत थे। इंग्लैंड के साथ मिल गया फ्रांस और यूएसएसआर, और जर्मनी के साथ टर्की। तो अब हम मजीद थोड़ा सा आगे देखते हैं कि इस जंग में हुआ क्या, जो एग्जाम में आपको नहीं आएगा लेकिन आपको पता होना चाहिए कि व्हाट डज इट मीन बाय द वर्ल्ड वार वन, क्यों इसे जंगे अजीम अव्वल, वर्ल्ड पूरी दुनिया को क्यों शामिल किया जाता है इसके अंदर। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ी सी चीजें सर बिकॉज ये 4 इयर्स तक रही थी, ये भी तो अंदर हाईलाइट करना चाहिए मैम। जी 4 इयर्स तक, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि डेडलीस्ट वॉर्स रही हैं, बहुत खूनी जंगें रही हैं। कि ये जंगें कुछ 2 4 5 10 दिन तक नहीं थी, ये 4 साल तकरीबन रही थी। 1914 में खत्म हुई थी, स्टार्ट हुई थी, और तकरीबन यस। 1919 के अंदर इसका बाकायदा इख्तिताम हुआ था। तो अब मैं आपको मजीद 1918 तक ऑलमोस्ट हुई थी। जी 1918 के अंदर इसको खत्म हुआ था, लेकिन खत्म होते होते जो सब कॉन्टिनेंट में इसके साथ ताल्लुक बना वो 1919 में। बहरहाल 1918 या 19 के अंदर इसका इख्तिताम हुआ। यस सर। अब मैं आपको इस यूरोपियन कॉन्टिनेंट को जरा हाईलाइट करके बताता हूँ कि इसके अंदर क्या था। इस जंग के अंदर आप दो ब्लॉक्स बना लीजिए, दो ब्लॉक्स बना लीजिए इस जंग के अंदर। इस जंग के कोर्स को समझने के लिए दो ब्लॉक्स बना लीजिए, एलाइड ब्लॉक्स एंड एक्सिस ब्लॉक्स, जिसको आप एलाइड ब्लॉक्स भी कहते हैं और उसको आप एक्सिस ब्लॉक्स भी कहते हैं। कुछ ममालिक एलाइड ब्लॉक्स के अंदर थे, कुछ ममालिक एक्सिस ब्लॉक्स में थे, जिसको आप एलाइड फोर्सेस भी कहते हैं और एक्सिस फोर्सेस भी कहते हैं। अच्छा जी, अब कौन कौन से दो ब्लॉक्स बना लीजिए, एलाइड फोर्सेस या एलाइड ब्लॉक्स, और उसके बाद एक्सिस फोर्सेस। दो ब्लॉक्स हैं आपस के अंदर, दोनों आपस में चल रहे हैं। एलाइड ब्लॉक्स के अंदर कौन कौन से कंट्रीज मौजूद हैं जो आपस में मिले हुए हैं, आपस में मिले हुए हैं और एक्सिस फोर्सेस के खिलाफ वो जंग लड़ रहे हैं। वो कौन कौन से कंट्रीज? सबसे पहले जी इंग्लैंड, फ्रांस, यूएसएसआर।
ये 3 कंट्रीज बड़े कंट्रीज हैं। तो ये है जी एक ग्रुप के अंदर। दूसरे ग्रुप के अंदर, अच्छा इसके अंदर आप इटली भी कर लीजिए। ये सर इटली, जापान, रोमानिया, सर्बिया, ये सारे इसी में आते हैं। ये जो आप बता रहे हैं कि जापान, रोमानिया, सर्बिया, क्योंकि ये इलाके आते थे, अब रोमानिया और सर्बिया यूएसएसआर के अंडर आते थे, इसलिए हमने यूएसएसआर लिख दिया। जो यस सर। हाँ, उसके बाद जापान एक अलग कंट्रीज था, उसको उसको भी आप लिख लीजिए साथ। फिर हम लोग ऑस्ट्रिया हंगरी नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रिया हंगरी कुछ जर्मनी के अंडर था ऑस्ट्रिया, और हंगरी जो यस सर। इंग्लैंड के, और पोलैंड भी इंग्लैंड के अंडर था। तो हम लोग वो छोटे कंट्रीज हैं, वो हमने लिख रहे हैं। हम बड़े बड़े पावरफुल कंट्रीज लिख रहे हैं कि जो जिनकी हुकूमत थी दूसरे कंट्रीज पर भी। सर तुर्की भी इसी में आएगा शायद। सॉरी, तुर्की भी इसी में आएगा। एक्सिस फोर्सेस में आएगा टर्की, यस सर। फोर्सेस में आएगा। तो ये दो ब्लॉक्स आपस के अंदर जंगे लड़ रहे हैं। ये दो ब्लॉक, ये एक ब्लॉक बन गया जंग के लिए, और ये एक ब्लॉक बन गया। ये देखने में आपको सिर्फ ऊपर इंग्लैंड, फ्रांस, यूएसएसआर, इटली और जापान लग रहे हैं, लेकिन अब इंग्लैंड के का कंट्रोल जिस जिस इलाके के ऊपर है वो भी इस जंग में शामिल है। फ्रांस का कंट्रोल जिस जिस इलाकों पर शामिल है वो भी इस जंग में। यूएसएसआर, जैसे मैंने बताया कि 12 ममालिक पर कब्जा था यूएसएसआर का, और 12 ममालिक मिलकर यूएसएसआर बनते हैं, तो वो भी इस जंग में शामिल है। देन वी हैव इटली। इटली अफ्रीकन कंट्रीज पर कब्जा रखता था, इसलिए अफ्रीकन कंट्रीज भी इसमें शामिल हो जाएंगे। देन जर्मनी, जर्मनी भी को 5 से 6 ममालिक के ऊपर अपना कब्जा रखता था, इसलिए वो भी इस जंग में शामिल है। एट टर्की, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हेयर, यहाँ पर इसको मैं हाईलाइट करने जा रहा हूँ, टर्की। अच्छा जी, टर्की क्यों मशहूर है जी, और किन किन इलाकों पर इसका कब्जा? मुस्लिम कंट्री है, लेकिन इसका कब्जा किसी मुल्क पे नहीं था, बट देयर वाज अ रूल ऑफ खिलाफत एट दैट टाइम। खिलाफत का एक निज़ाम चल रहा था। व्हाट इज दिस खिलाफत? खिलाफत क्या चीज़ है? खिलाफत बेसिकली एक निज़ाम कार है हुकूमत का, जो कि पूरे मुस्लिम उम्मा के लिए होता है, और पूरी मुस्लिम मुस्लिम उम्मा एक लीडर को चूज करती है, जिसको खलीफा कहते हैं। थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ, आप लोगों को मोस्टली पता ही होगी, मतलब मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिवाइंड करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि खिलाफत क्या होती है। चले उर्दू में थोड़ा लिख देते हैं। खिलाफत, इस दुनिया से जब अल्लाह के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा फरमाया तकरीबन 632 में, 632 में इस दुनिया से वो तशरीफ ले गए दूसरी दुनिया में, और दीन को मुकम्मल किया उन्होंने। और दीन को मुकम्मल करने के बाद जब इस दुनिया से तशरीफ लेके गए, तो इस दुनिया के अंदर मुस्लिम उम्मा का एक लीडर बना। यानी पहले तो आका यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में मुसलमानों के लीडर थे, रहनुमा थे। फिर जब वो इस दुनिया से पर्दापोशी फरमाई उन्होंने, तो जो लीडर बने इस दुनिया के, इस दुनिया में मुस्लिम उम्मा के जो लीडर बने, उनको हम कहते हैं खलीफा। सो द फर्स्ट खलीफा वाज द फर्स्ट खलीफा? अबू बकर सिद्दीक, हु बिकेम द फर्स्ट खलीफा, जिनको आप खलीफा अव्वल भी कहते हैं। यस सर। खलीफा अव्वल। उसके बाद जब हजरत अबू बकर ने इस दुनिया से पर्दापोशी फरमाई, तो फिर दूसरे उमर, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनको आप खलीफा दोयम कहते हैं, फिर जब हजरत उमर ने पर्दापोशी फरमाई, तो फिर हजरत उस्मान, जिनको आप खलीफा स्वयं कहते हैं। उसके बाद जी जब हजरत उस्मान की शहादत हुई, तो फिर हजरत अली, जिनको आप खलीफा चहारम कहते हैं। ठीक है। फिर हजरत अली के बाद 6 माह तक जो खिलाफत रही वो हजरत इमाम हसन के पास रही, जिनको आप चौथा खलीफा ही कंसीडर कीजिए या पंजम कह लीजिए, पांचवा हजरत इमाम हसन। तो हजरत इमाम हसन के बाद जो खिलाफत गई वो एक फैमिली के पास चली गई, जिनको मुआविया उमैया फैमिली कहते हैं। तो हजरत अमीर मुआविया खलीफा बने, और यहाँ से खिलाफत के बाद खानदानी खिलाफत का आगाज हुआ, जो कि चूँकि हमारा सब्जेक्ट इस्लामियात नहीं है, तो हम लोग इस चीज़ में बहस नहीं करेंगे कि ख़ानदानी खिलाफत क्या होती है। बहरहाल
अच्छा, ये चल रही, इसको कहते हैं खिलाफत। क्या कहते हैं? खिलाफत। खिलाफत का मतलब है कि मुस्लिम उम्मा की लीडरशिप एक आदमी के पास रहे, मुस्लिम उम्मा की लीडरशिप एक आदमी के पास रहे। तो ये कुछ खिलाफत का ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ। यहां तक जो खिलाफत है, यहां तक खिलाफत है, इस खिलाफत का एक नाम है, स्पेसिफिक नाम, जिसको कहते हैं जी खिलाफत राशिदा। राशिदा का मतलब होता है राइट, परफेक्ट, बेहतरीन। राशिद, राशिद को अरबी में कहते हैं जी राइटियस, ब्यूटीफुल, बेहतरीन, सबसे अच्छा। यानी ये जो खिलाफत के तकरीबन 30 साल बनते हैं, हजरत अबू बकर से स्टार्ट होकर हजरत इमाम हसन तक 30 साल पूरे बनते हैं। ये मुस्लिम उम्मत की लीडरशिप के बेहतरीन 30 साल थे, इसलिए इनको खिलाफत राशिदा कहते हैं। इसके बाद बेहतरीन थे या नहीं हम उस बहस में नहीं जाते, लेकिन उसके बाद हर खिलाफत को हम मुख्तलिफ नामों से याद करते हैं। यानी हजरत अमीर मुआविया जब खलीफा बने, तो जब उन्होंने दुनिया से पर्दापोशी फरमाई हजरत अमीर मुआविया ने, तो उनके बेटे खलीफा बने। तो लेकिन ये बेटे से बेटे खलीफा बनने की जो रवायत है आपको ऊपर नजर नहीं आएगी खिलाफत राशिदा में। यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक पहले खलीफा थे, उनके बेटे खलीफा नहीं बने, हजरत उमर बने, जो कि डिफरेंट फैमिली से, डिफरेंट खानदान से ताल्लुक रखते थे। फिर जब हजरत उमर की शहादत हुई तो उनके बेटे खलीफा नहीं बने, बल्कि हजरत उस्मान गनी खलीफा बने, जो कि डिफरेंट फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। फिर जब हजरत उस्मान गनी की शहादत हुई तो उनके कोई बेटे या कोई और रिश्तेदार खलीफा नहीं बने, बल्कि खलीफा एक डिफरेंट फैमिली से, आप सल्लम के जो दामाद थे हजरत अली मौला, वो खलीफा बने। तो फिर हजरत अली के बाद उनके बेटे 6 माह के लिए हजरत इमाम हसन, और जब हजरत इमाम हसन ने ये फील किया कि देखें बाप के बाद खिलाफत बेटे को नहीं जानी चाहिए, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया, उन्होंने खुद से रिजाइन कर दिया। लेकिन खिलाफत राशिदा के बाद जब खिलाफत या मुसलमानों की लीडरशिप जिस आदमी के पास गई, तो उसने इसको कन्वर्ट किया टुवर्ड्स हिज फैमिली या टुवर्ड्स हिज सन। तो यहां से खिलाफत तो चली, इसको खिलाफत तो कहते हैं, लेकिन बहुत से लोग इसको मलूकियत भी कहते हैं। मलूकियत, इसको मलूकियत भी कहते हैं। बहरहाल ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है कि खिलाफत क्या होती है, मलूकियत क्या होती है। बहरहाल हम इसको खिलाफत ही कंसीडर करेंगे। तो जो खिलाफत आई खिलाफत राशिदा के बाद, वो आई मुआविया फैमिली के अंदर, ठीक, और जिसको कहते हैं उमैया खिलाफत, उस फैमिली का नाम था उमैया, तो उस हिसाब से उमैया खिलाफत। अच्छा, उमैया खानदान के पास कुछ 100-150 साल के पास खिलाफत यानी मुसलमानों की लीडरशिप रही। फिर उमैया के बाद चली गई जी अब्बासी, अब्बासी फैमिली, अब्बासी खिलाफत। जो अब्बासी खिलाफत, अब्बासी लोग कौन थे? ये हजरत अब्बास जो आप के चचा थे, उनकी औलाद में से थे। तो उमैया फैमिली से फिर खिलाफत चली गई अब्बासी खिलाफत के हाथ में। अच्छा, फिर अब्बासी खिलाफत के बाद गई जी फातमीद खिलाफत, यानी मुसलमानों ने मुस्लिम उम्मा की जो लीडरशिप थी गई वो फातमीद फैमिली के पास गई। फातमीद हजरत फातिमा के डिसेंडेंट्स में से थे। उसके बाद एंड के अंदर जो खिलाफत गई वो गई जी उस्मान, उस्मानिया खिलाफत। ये उस्मानिया खिलाफत एंड में फिर आ गई जी टर्की के पास। ये जो आप अर्तुरुल ड्रामा देखते हैं, ये जो अर्तुरुल है, ये बेसिकली द 4 फादर्स में से, ग्रैंड फादर्स में से है जी उस्मान के। और उस्मान की बाद में फिर उसने टर्की पर अटैक किया, और टर्की पर यूरोप के बाद फिर एशिया, फिर इस तरह करके मुस्लिम उम्मा की जो खिलाफत आई है उस्मानिया खिलाफत। तो एंड के अंदर जो खिलाफत आती है इसको हम टर्किश खिलाफत भी कहते हैं। तुर्की खिलाफत। सो अब आपको ये सारी चीज स्टोरी समझाने का मकसद ये था कि आपको पता चले कि खिलाफत क्यों इम्पोर्टेंट है मुसलमानों के लिए। क्योंकि मुसलमान हमेशा से ही एक खलीफा को अपना लीडर मानते रहे हैं, और उसको कुछ मजहब के साथ भी जोड़ते हैं, खलीफा का बनना, खिलाफत करना, और इसको थोड़ा सा मजहबी रूप भी देते हैं वो मुसलमान। क्योंकि हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, हजरत हसन, हजरत अमीर मुआविया, तो यहाँ से जो सिलसिला स्टार्ट हुआ है उसको मुसलमान बड़ी कदर की और बड़ी मजहबी निगाह से देखते हैं। सो इसलिए तुर्की जो है, क्योंकि वो खिलाफत का, तुर्की में उस वक्त खिलाफत थी,
और तुर्की ज्यादातर इस्लामिक ममालिक जिनके ऊपर बरतानिया का कब्जा नहीं था, उन इस्लामी ममालिक पर का निज़ाम टर्की चलाता होता था। यानी मिसाल के तौर पर सऊदी अरेबिया यानी मक्का और, ठीक है, मक्का और मदीना, उस वक्त जो मक्का और मदीना का कंट्रोल था, 1914 की बात कर रहे हैं, वो टर्की के हाथ में था। और इसके ऊपर अभी रिसेंटली बहुत डिबेट्स भी हो रही हैं कि 1921 वाला मुआहिदा, 100 साला मुआहिदा वगैरह, वो आप लोग मतलब नेट पे देख लीजिएगा। बहरहाल आपको मैं बता रहा हूँ कि टर्की उन मुस्लिम ममालिक जिनके ऊपर बरतानिया या फ्रांस का कब्जा नहीं था, उनका निज़ाम चलाता था टर्की, बीइंग खिलाफत, बीइंग खलीफा। खलीफा होने के नाते से ये उसका फर्ज था कि वो मुस्लिम उम्मत को का निज़ाम चलाए। तो जो खिलाफत थी वो तुर्की के हाथ में थी। तुर्की वाज द सेंटर, इस्तांबुल वाज द कैपिटल ऑफ द खिलाफत, सो दैट्स व्हाई Turkey was so much important in the eyes of the Muslim population. मुस्लिम पॉपुलेशन के लिए टर्की बड़ा अहमियत वाला मुल्क था, बहुत ही एक सेंटिमेंट्स, रिलीजियस सेंटिमेंट्स इसके साथ मौजूद थे। अच्छा जी, अब ये पूरी मैंने आपको जी महरोज, आपको मैं अनम्यूट करने की ट्राई कर रहा हूँ लेकिन आप गालिबन नहीं हो पा रहे, ठीक है। तो ये दो ब्लॉक्स हैं आपस में जो कि जंग इन्होंने स्टार्ट की 1914 के अंदर। आपको वाले ब्लॉक के अंदर मैंने कुछ कंट्रीज लिख के दी हैं। 1914 के अंदर ये जंग स्टार्ट हो गई। इस जंग का जो खात्मा हुआ, इस जंग का जो एंड हुआ, वो ये हुआ कि एक्सिस ब्लॉक या एक्सिस फोर्सेस लॉस्ट द वॉर। एक्सिस फोर्सेस में कौन कौन मौजूद है जी? जर्मनी, तुर्की। मेजर कंट्री जो है जर्मनी और टर्की। अब यस जी मेरोज, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, वो तुर्की का ही मैंने पूछना था, जो मक्का मुकरमा और मदीना शरीफ का, तो सर आपने फौरन बता दिया था जी ठीक है। अच्छा, तो अब ये जो ब्लॉक है जो हार गया है, उसमें मौजूद है जर्मनी और टर्की। अच्छा, अगर आप इस पूरी जंग को देखिए, जो मैंने आपको एक नक्शा बना के जंग का दिखाने की कोशिश की है, यहाँ पर ये जो आपको मैंने ब्लॉक्स बना के दिखाने की कोशिश की, इन ब्लॉक्स के अंदर दो कंट्री ऐसी हैं जिनका डायरेक्ट लिंक बनता है सब कॉन्टिनेंट के साथ या सब कॉन्टिनेंट के लोगों के साथ। डायरेक्ट लिंक बनता है, दो कंट्री ऐसे हैं। क्या बता सकते हैं वो कौन कौन से हैं? क्या आएगा उसमें? जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये जो आपको एलाइड फोर्सेस के कंट्रीज नजर आ रहे हैं और एक्सिस फोर्सेस के कंट्रीज नजर आ रहे हैं, इनके अंदर दो कंट्रीज ऐसे हैं जिनका डायरेक्ट रिलेशन है सब कॉन्टिनेंट के साथ और सब कॉन्टिनेंट के लोगों के साथ। क्या बता सकते हैं वो सर? कौन? एक तो तुर्की आ जाता है और सर एक इंग्लैंड आता है मेरा। बिल्कुल, एक आपने बता दिया तुर्की, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि खिलाफत का कंट्रोल था, कैपिटल था, दारुल खिलाफा था ये खिलाफत का, और मुसलमानों के लिए बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता था खलीफा को। ऑल दो अगरचे सब कॉन्टिनेंट पर हुकूमत इंग्लैंड की है, हुकूमत किसकी है? जी सर, इंग्लैंड की। इंग्लैंड की। जी सर। भी जो मुसलमान है सब कॉन्टिनेंट के, वो तुर्की को बड़ी कदर की निगाह से हमेशा से देखते थे। एक तो वजह थी क्योंकि वो निज़ाम खिलाफत वहां पर चल रहा था, और खिलाफत का निज़ाम स्टार्ट होता है जी हजरत अबू बकर से, हजरत उस्मान से, जो कि हमारे खलीफा रहे हैं और बड़े जलीलुल कदर सहाबा में से। ठीक है। दूसरा, हमें हमेशा से ही पता था कि तुर्की कंट्रोल करता है मक्का का और मदीना को। तो मक्का और मदीना के जो सेंटिमेंट्स हैं, मक्का और मदीना की जो सेंटिटी है, तकद्दुस है, उसकी वजह से तुर्की हमारे हमेशा बड़ा नजदीक रहा है सब कॉन्टिनेंट। तो ये जो दो ममालिक मैंने आपके सामने रखे, एक इंग्लैंड बीइंग अ मास्टर, बीइंग अ रूलर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट का रूलर होने की वजह से, और तुर्की खिलाफत का हब होने की वजह से, तो ये दो जो ममालिक हैं ये सब कॉन्टिनेंट के लोगों के नजदीक हैं, सब कॉन्टिनेंट पर इन्फ्लुएंस है इनका, सब कॉन्टिनेंट के ऊपर इनका असर है। अब ये जंग हार गई है एक्सिस ब्लॉक, और एक्सिस ब्लॉक के अंदर टर्की जंग हार गया है, और जीतने वाली जो कौमें हैं उनमें है इंग्लैंड, फ्रांस, यूएसएसआर, इटली, जापान वगैरह।
तो अब मसला ये है कि इंग्लैंड या फ्रांस, यूएसएसआर, इटली और जापान ये हारने वाली नेशंस के साथ कैसा सलूक करेंगे, क्वेश्चन ये पैदा होता है। सो द क्वेश्चन है Yes. कि इंग्लैंड, फ्रांस, यूएसएसआर, इटली और जापान इस 4 साला जंग के अंदर जर्मनी और टर्की को शिकस्त देते हैं, और टर्की और जर्मनी को शिकस्त देने के बाद डेफिनेटली ये जो विनिंग नेशंस हैं ये लूजिंग नेशंस पर कब्जा कर लेंगे। ये क्या करेंगे? कब्जा कर लेंगे। कौन सी नेशंस? जो यूरोपियन नेशंस हैं वो उनका विनिंग नेशंस हैं। जर्मनी भी यूरोपियन नेशन है। जो विनिंग नेशन है यानी जो एलाइड फोर्सेस हैं ये एक्सिस फोर्सेस पर कब्जा करेंगे, क्योंकि वो एक्सिस फोर्सेस जंग हार गए हैं। एक्सिस फोर्सेस जंग हार गए हैं। तो देखें जी, इंग्लैंड ने अगर जर्मनी पर कब्जा करना है 100 बिस्मिल्लाह तो करे, कर ले, हमें तो कोई इतराज नहीं है। लेकिन अगर इंग्लैंड टर्की पर कब्जा करता है, टर्की पर, तो क्या सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों को इसका कुछ असर फर्क पड़ेगा इस बात का? ये बताइए कि जो विनिंग नेशंस हैं, जी सर, क्या बोल रहे थे? विनिंग नेशंस? मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो विनिंग नेशन है जंग के खात्मे के बाद वो लूजिंग नेशन पर अपना कब्जा बना लेगी। जाहिर है जो जीतने वाली कौमें है वो हारने वाली कौमों को पर कब्जा कर लेती हैं। तो इस कब्जे के अंदर अगर तो जर्मनी पर कब्जा जारी रहे तो सब कॉन्टिनेंट के लोगों को कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, जर्मनी पर आप कब्जा करें, हमें कोई मसला नहीं। लेकिन टर्की जी पर सर। अगर कब्जा होता है बरतानिया का या फ्रांस का या यूएसएसआर का या इटली का या जापान का, जो विनिंग नेशन है, तो क्या सब कॉन्टिनेंट के लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे? सर कभी भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। नहीं, कभी भी नहीं करेंगे सर। कभी भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। उसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो खिलाफत खत्म हो जाएगी। हमें पता है कि जैसे ही इंग्लैंड ने या यूएसएसआर ने या फ्रांस ने टर्की पर कब्जा किया तो उन्होंने सबसे पहले खिलाफत खत्म कर देनी है, यानी मुसलमानों की जी यूनिटी सर, खत्म करनी है, मुसलमानों की लीडरशिप खत्म कर देनी है। बिल्कुल बेशक उस वक्त बिल्कुल राय सर। नाम ही थी, ज्यादातर इलाकों पर ऑलरेडी इंग्लैंड का कब्जा था, मुसलमान इलाकों पर, बट स्टिल जो रिमेनिंग इलाके थे उन पर अगर टर्की का कब्जा है भी तो वो भी खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि द इम्पोर्टेंट पॉइंट वाज देयर कि इंग्लैंड का कब्जा हो जाएगा मक्का और मदीना के ऊपर। द मक्का एंड बिल्कुल सर। will went to the direct under control of the English rulers या French rulers या USSR Italy. So that was highly unacceptable for the Muslims कि मक्का और मदीना पर कब्जा हो जाए किसी नॉन इस्लामी कंट्री का, गैर इस्लामी कंट्री का। So that was not acceptable. So टर्की खिलाफत का आना, खिलाफत का खत्म होना और टर्की का हारना, ये बहुत बड़ा एक सब कॉन्टिनेंट के लिए एक हैपनिंग थी जो हम अभी आने वाले अपने पॉइंट्स के अंदर देखेंगे। तो टर्की का हार जाना सब कॉन्टिनेंट के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अलमिया था, और उस अलमिये को बाकायदा तौर पर फील किया गया सब कॉन्टिनेंट में मुसलमानों ने। वो भी हम आगे आने वाले पॉइंट्स के अंदर देखते हैं। तो ये मैंने आपको वर्ल्ड वॉर 1 का एक बर्ड आई व्यू देने की कोशिश की है जो एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आप लोग देखिएगा ये बहुत बड़ी जंग थी। दुनिया में 3 से 4 ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया का नक्शा तब्दील किया। सबसे पहला इंसिडेंट जो मेरे नजदीक आता है वो है द एडवेंट ऑफ इस्लाम, इस्लाम का ज़हूर। यानी दुनिया में इस्लाम का आने से इस्लाम पूरी दुनिया 180 एंगल के ऊपर चेंज हो गई। ऑल टुगेदर एक ट्विस्ट लिया, एक नया निज़ाम, नई शरीयत, नया रहन सहन, नई किताब, हर चीज। तो पहला जो मैं दुनिया के अंदर एक सबसे बड़ा बताता हूँ कि दुनिया में जो पर जो असर छोड़ा गया जिस चीज ने, पहला है द एडवेंट ऑफ इस्लाम, दूसरा है दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तीसरा है सेकंड वर्ल्ड वॉर, चौथा है जी ये 9/11 और पांचवा ये कोरोना आप कर लें। तो ये 5 वाकयात, 5 हैपनिंग्स ऐसी हैं जो पूरी दुनिया पर इन्होंने अपना असर छोड़ा है। एडवेंट ऑफ इस्लाम अभी भी अपना असर छोड़ रही है, इस्लाम चल रहा है, तबलीग चल रही है। द सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर दूसरा सबसे बड़ा रिलीजन बन चुका है। इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग व्हिच इज कंटिन्यूसली हैपनिंग, जो हो रही है। वर्ल्ड वॉर 1 की हैपनिंग, वर्ल्ड वॉर 2 की हैपनिंग,
फिर उसके बाद 9/11 की हैपनिंग और अब कोरोना की। तो ये 5 ऐसे जो मुझे याद पड़ते हैं नॉन हिस्ट्री के अंदर इंसिडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया के नक्शे तब्दील किए हैं, दुनिया की हिस्ट्री तब्दील की है, लोगों को तब्दील कर दिया। तो ये बहुत बड़ा वाकया था। बहरहाल चलते हैं आगे। तो हमारी टाइमलाइन के अंदर वर्ल्ड वॉर 1 1914 सिर्फ एक नंबर के लिए आएगा, बाकी जितनी मैंने आपको स्टोरी सुनाई है तो चाहे तो भूल जाएं, वो ज्यादातर कंपनी की मशहूरी के लिए। चले जी, अगला पॉइंट देखते हैं जी। लखनऊ पैक्ट 1916 एक नंबर के लिए आएगा। आई विल आस्क व्हेन लखनऊ पैक्ट वाज साइंड, तो आप कहेंगे जी 1916 यस सर। लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट क्या था जी? ये पहला इंसिडेंट जी। जी बच्चे बताइए। सर ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान एक मुआहिदा था जी बिल्कुल 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 आप ठीक है। जो कि 1916 में हुआ था। 1916 में हुआ था। थोड़ा सा बता देता हूँ, एग्जाम में नहीं आएगा, सिर्फ एक नंबर के लिए मैं पूछूंगा कि व्हेन लखनऊ पैक्ट वाज साइंड बिटवीन द कांग्रेस एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तो यू विल आस्क क्या चीज। ये वो चीज है बच्चे के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही है, पहली जंग अजीम चल रही है, इंग्लैंड का कंट्रोल है सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, और जब ये जंग स्टार्ट हुई तो डेफिनेटली इंग्लैंड को मैन पावर की जरूरत पड़ी, इंग्लैंड को खुराक की जरूरत पड़ी। जंग उसको पता था इंग्लैंड को कि बहुत लंबा अरसा चलेगी। इंग्लैंड ने सबसे पहले सब कॉन्टिनेंट के लोगों को कहा कि इस जंग में इंग्लैंड का साथ दें, इंग्लैंड की मदद करें, फौजी बने, भर्ती हों, और जर्मनी और टर्की के खिलाफ आप जंग के अंदर जाएं। तो जब इंग्लैंड को सब कॉन्टिनेंट से लोगों की जरूरत पड़ी तो उसने सबसे पहले जो तो उस वक्त जो दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज थी, कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग, ये दो बड़ी पार्टीज थी उस वक्त। कांग्रेस ज्यादा बड़ी पार्टी थी क्योंकि पुरानी थी एज कम्पेयर टू द मुस्लिम लीग, इन टर्म्स ऑफ मेंबरशिप सबसे बड़ी थी, लेकिन मुस्लिम लीग भी अच्छी खासी बड़ी उस वक्त हो चुकी थी। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ये फील किया कि नाउ द टाइम हैज अराइव्ड, कि वक्त आया है अब कि इंग्लैंड को सब कॉन्टिनेंट के लोगों की जरूरत है। तो अगर इंग्लैंड को सब कॉन्टिनेंट के लोगों की जरूरत है तो हमें एक साथ यूनाइट होना चाहिए और इंग्लैंड से सब कॉन्टिनेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा फायदे हासिल करने चाहिए, बेनिफिट्स लेने चाहिए। सो दिस वाज द वेरी फ्यू इंसिडेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर जॉइंटली मिलकर आपस में बैठे और अपना एनुअल सेशन किया और आपस में एक मीटिंग की जिसके अंदर उन्होंने कुछ डिमांड रखी बरतानिया से कि ठीक है हम आपकी मदद करते हैं, सब कॉन्टिनेंट के लोग आपकी मदद करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू विल आल्सो रिटर्न अस इन दिस रिटर्न, कि आप हमें भी उस कुछ रिटर्न करेंगे इस हेल्प के लिए। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का वेरी फ्यू एक यूनिटी आपको नजर आई इन लखनऊ पैक्ट 1916 के अंदर, इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद ही Muhammad Ali Jinnah was called as the Qaid-e-Azam. तो he was very ardent supporter of Hindu-Muslim unity. Hindu-Muslim unity के बड़े ardent supporter थे वो। आफ्टर दिस सेशन लखनऊ पैक्ट 1916 बड़ा कामयाब हुआ, ये इसके अंदर एक बड़ा कामयाब जलसा हुआ और कामयाब भी सी ये मीटिंग कंप्लीट हुई। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर आपस किया, फिर मिलकर उन्होंने बरतानिया से बेनिफिट्स लेने के लिए एक प्लानिंग की। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द लखनऊ पैक्ट, वेरी one of the very few incidents जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक दूसरे के नजदीक आए। एंड एट द एंड ऑफ दिस सेशन द लखनऊ पैक्ट मोहम्मद अली जिन्ना वाज कॉल्ड एज द कायदे आजम, उनको टाइटल दिया कि ही इज अ वेरी ग्रेट लीडर। तो एक नंबर के लिए मैं आपके सामने आ रहा हूँ। यस। ठीक है, इसकी सिर्फ इतनी ही अहमियत है अभी के लिए। टाइमलाइन में सीक्वेंस के अंदर हम एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 1918,
अच्छा जी, आपके पास टाइमलाइन के अंदर एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 भी एंटर हो गया 1918, जंग अजीम अव्वल खत्म हो गई। अब हुई कि जर्मनी और टर्की ने हथियार फेंक दिए, इन्होंने शिकस्त कबूल कर ली। 4 साल की जंग चलती रही और इस 4 साल जंग के खात्मे के बाद डेफिनेटली जो विनिंग नेशंस हैं उन्होंने लूजिंग नेशंस के इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया, जर्मनी पर कब्जा करना शुरू कर दिया और टर्की पर कब्जा करना शुरू कर दिया। अब जी टर्की पर कब्जा करना जब शुरू किया तो क्या नतीजा निकला होगा सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों का के लिए? सर क्या पिछली सवाल वन पे किया आपने? What must be the feelings of people of subcontinent? क्या फील किया होगा सब कॉन्टिनेंट के लोगों ने when England tried to capture the Turkey? जब टर्की को पर कब्जा करना की कोशिश की होगी इंग्लैंड ने, तो what must be the feeling of Muslims of sub? सर मुसलमानों के जज्बात को ज़ाहिर बात है ठेस पहुंचाई गई थी। तो जिसके बाद तहरीक खिलाफत चली थी, उसको जोर पकड़ी थी, उसका जिसकी क़यादत सर सैयद अहमद खान ने की थी। मुसलमानों के हकूक को सर असल में छीन लिया गया था उनको, मतलब किसी हर चीज से उनको जैसे बेदखल कर दिया गया था। अच्छा जी, खिलाफत मूवमेंट 1 नंबर के लिए आएगा। एक नंबर के लिए आपके पास आएगा। ये कहने को तो 1 नंबर के लिए एक मैंने आपको एक डेट बता दिया, खिलाफत मूवमेंट, जिसको तहरीके खिलाफत भी उर्दू में कहते हैं, तहरीके खिलाफत। लेकिन ये बहुत बड़ा वाकया सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री का, बहुत बड़ा वाकया है सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री का मुसलमानों के लिए। तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, एग्जाम में नहीं आएगा ये सब। एग्जाम में सिर्फ ये मैं पूछूंगा कि व्हेन खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड, तो आप लोग कहेंगे 1919 टू 20। हाँ जी, 1919 से लेकर 1924। 4। अच्छा जी, चलें जी। अच्छा, ये खिलाफत मूवमेंट अब चलाई क्यों जा रही है और कहाँ पर चलाई जा रही है, किस इलाके में? सर ये सब कॉन्टिनेंट में ही चलाई गई थी ना जी, सब कॉन्टिनेंट में ही चलाई गई थी। और जो इंडिया के ब्रिटिश इंडियंस थे ना, जो मुसलमान थे ना इंडिया के, ये उन्होंने चलाई थी। तो अब इंडिया के मुसलमान थे, पाकिस्तान के तो थे ही नहीं। जी, क्या है, क्या लिखे हैं? सब कॉन्टिनेंट के अंदर चलाई गई। क्यों चलाई गई? टू सेव द खिलाफत एंड टू सिक्योर द सेंटिटी ऑफ मक्का एंड मदीना। तकद्दुस को, मक्का और मदीना के तकद्दुस को बहाल रखने के लिए, कि मक्का और मदीना पर कब्जा ना करें। टर्की जंग हार गया, नो इशू, हमें पता है टर्की हार गया, लेकिन एक तो खिलाफत को खत्म ना करें। मुसलमानों के लिए बड़े सर रिलीजियस, और एक इसकी सरहदों की भी हिफाजत थी आई थिंक, और एक और भी सर पॉइंट था, 3 पॉइंट्स थे शायद। किसकी सरहदों की हिफाजत? तुर्की की सरहदों की हिफाजत भी शायद था। सरहदों की हिफाजत का मतलब ये है कि जो विनिंग नेशंस थी, वो जिस तरह उन्होंने जर्मनी को 6 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, ठीक है, जब जर्मनी जी सर। जंग हारे तो जर्मनी को 5 से 6 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, हिस्सों को तकसीम कर दिया। जो फ्रांस के साथ लगता था वो फ्रांस को दे दिया, जो इंग्लैंड के साथ लगता था इंग्लैंड को दे दिया, जो यूएसएसआर के साथ लगता था उसको दे दिया। और यही हाल उन्होंने टर्की का भी करना था, लेकिन जी बिल्कुल सर। उन्होंने टर्की को कुछ नहीं किया, टर्की को वैसे रहने दिया, लेकिन टर्की के ऊपर सैंक्शंस बहुत लगा दी, पाबंदियां बहुत लगाई, ट्रेड पाबंदियां बहुत लगाई।
और उसके बाद उन्होंने उसके बिल्कुल सर। और लेकिन दूसरा काम है कि टर्की के तो कंट्रोल सर ये जो ट्रेड की आप पाबंदी कह रहे हैं, ये जो अभी तक उनकी लगी हुई है साहिलों पे, जो वो पाबंदी है सारी उनकी, मतलब वो ट्रेडिंग वगैरह अभी तक वो नहीं है, उन पे कोई भी मतलब नहीं है टैक्सेस वगैरह, तो वो ये भी सर उसी के ही अंडर आते हैं? नहीं, अब नहीं, क्योंकि टर्की इज क्वाइटली अ डिफरेंट कंट्री राइट नाउ, डिफरेंट कंट्री। टर्की इज नाउ बिकमिंग अनदर लीडर ऑफ मुस्लिम उम्मा। आपको तैयब उर्दवान को देखना चाहिए, वो दोबारा जी से जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। वो लेकिन सर ये जो ये जो माहिदा हुआ है 2021 में जो खत्म हो रहा है, तो ये ट्रेड वाला भी था, मैंने ये भी सुन पड़ा हुआ है सारा कि वो भी उसके अंडर टैक्सेस वगैरह जो मरासलात दी हुई थी इन्होंने, वो अब खत्म हो जाएंगी और ये मक्का मदीना भी इनके अंडर आ जाए। हाँ, मक्का और मदीना का, लेकिन ऐसा होगा नहीं डेफिनेटली। टर्की कभी भी कोशिश नहीं करेगा कि बिल्कुल सर इसके, तो बिल्कुल सर इसके हो सकता है एक नई जंग क्रिएट हो जाए इस पे। तो बहरहाल ये अब सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो तहरीक खिलाफत चल रही है, इसके दो तीन मकासद है। मकासद क्या नहीं, खिलाफत खत्म ना की जाए, टर्की को कुछ ना कहा जाए, टर्की के मुल्क पर कब्जा ना किया जाए, और तीसरा यह कि मक्का और मदीना की हुर्मत और तकद्दुस के ऊपर कोई हरफ नहीं आना चाहिए, कोई आंच नहीं आनी चाहिए। तो अब चूंकि दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान उस वक्त सब कॉन्टिनेंट में थे, अभी भी मुसलमान सब कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा, तो ये सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों ने ये फील किया कि इट इज देयर रिलीजियस ऑब्लिगेशन, ये उनका मजहबी फरीजा है कि वो खिलाफत के लिए निकले, खिलाफत को बचाने के लिए निकले, खलीफा को बचाने के लिए निकले, मक्का और मदीना को बचाने के लिए निकले। क्योंकि जो हाल जर्मनी का कर दिया था जंग के बाद बरतानिया ने, ये मोर लाइकली यही हाल टर्की का और यही हाल मक्का और मदीना का भी उन्होंने करना था। बहरहाल अब तहरीक खिलाफत दो मुसलमान भाई हैं, लीडर हैं, वो चला रहे हैं जी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर एंड मौलाना मोहम्मद अली शौकत। बोथ आर रियल ब्रदर्स, दोनों भाई हैं, दोनों मुसलमान लीडर हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से ताल्लुक रखते थे, बड़े नामों में शुमार होता था इनका, पैसा भी था इनके पास पोस्ट भी रह चुकी हैं, कोई जर्नलिस्ट भी थे ये लोग, इनके अपने अखबार भी निकलते थे, लोग इनको जानते थे सब कॉन्टिनेंट में। और इन्होंने ये फील किया कि नाउ द टाइम हैज अराइव्ड टू एजिटेट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूलर्स टू सेव द खिलाफत, के सब कॉन्टिनेंट के अंदर ब्रिटिश रूलर्स को ये बावर करवाया जाए कि खिलाफत के साथ आप कोई बुरा सलूक नहीं कर सकते। सो दीज टू नेम्स वर इन द फोरफ्रंट, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना मोहम्मद अली शौकत। इन्होंने तहरीक खिलाफत स्टार्ट की, चलें जी स्टार्ट कर दी। अब हम पढ़ क्यों रहे हैं इस तहरीक खिलाफत को, असल बात में उस तरफ आने लगा हूं। अच्छा जी, आप लोगों ने अपनी टाइमलाइन के अंदर एक जंग आजादी देखी है, बरतानिया से आजादी की एक जंग देखी है, मैं उसको हाईलाइट कर देता हूं। बरतानिया से एक आजादी की जंग यहां पर देखी है, ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये क्या है? क्या है भाई? दिस इज कॉल्ड एज द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी की जंग 1857, बरतानिया से आजादी की जंग। इस जंग का नतीजा क्या निकला कि इस जंग को कुचल दिया गया, इस जंग को खत्म कर दिया गया ब्रिटिश एम्पायर ने, ब्रिटिश रूलर्स ने। ठीक है, लेकिन इस 1857 की जंग के बाद एक तहरीक चली 1919 में, जिस तहरीक का नाम था तहरीक खिलाफत। अब इस तहरीक खिलाफत का मकसद और था, इस तहरीक खिलाफत का मकसद इंग्लैंड से आजादी हासिल करना नहीं था। इंग्लैंड से आजादी हासिल करने के लिए एक जंग 1857 में हो चुकी है, नाकाम हुई, ठीक है, इंग्लैंड का कब्जा मजबूत हो गया। लेकिन उसके कुछ साल बाद, उसके तकरीबन कुछ 71 साल के बाद, एक तहरीक चली सब कॉन्टिनेंट में, जो मुसलमानों ने चलाई, सिर्फ मुसलमानों ने चलाई, और उस तहरीक का क्या नाम है जी? जी बताइए, किधर गए हैं भाई? यस सर, आपका क्वेश्चन क्या था? मैं ये कह रहा हूं कि एक तहरीक चलाई है 1919 में खिलाफत के नाम से, और ये तहरीक चलाई है मुसलमानों ने। ये जो खिलाफत तहरीक थी, या तहरीक खिलाफत थी, या खिलाफत मूवमेंट थी, दैट वाज नॉट
टू गेट द इंडिपेंडेंस। ये इंग्लैंड से, बरतानिया से आजादी हासिल करने के लिए तहरीक नहीं थी चल रही, ये तहरीक यस सर, सिर्फ और सिर्फ राइट्स के लिए थी। जी खिलाफत को बचाने के लिए और मक्का और मदीना को बचाने के लिए। लेकिन यस सर, चूंकि, और ये चलाई भी सिर्फ मुसलमानों ने थी, सिर्फ मुसलमानों, क्योंकि हिंदुओं को तो कोई कंसर्न नहीं, खिलाफत से भी, मक्का से भी, मदीना से भी, टर्की से भी कोई कंसर्न नहीं है। हाँ, मुसलमानों को था सब कॉन्टिनेंट के, तो उन्होंने एक तहरीक चलाई, तहरीक खिलाफत के नाम से। और देखते ही देखते विद इन डेज, विद इन फ्यू डेज या फ्यू वीक्स, ये तहरीक इतनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई कि द एंटायर सब कॉन्टिनेंट केम इनटू एन हॉल्ट, एक हॉल्ट के अंदर आ गया, एक जैम लग गया, पूरे सब कॉन्टिनेंट को रुक गया सब कॉन्टिनेंट। ब्रिटिश अंपायर, ब्रिटिश रूल भी रुक गया, उनको समझ नहीं आना शुरू हुई कि अब ये हो क्या रहा है, ये हमारे खिलाफ तहरीक कौन सी चल रही है, किस तरह की ये तहरीक चल रही है कि इतनी ज्यादा तहरीक है। डेली लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग रोजाना हुकूमत के खिलाफ मार्च करते थे। रोजाना लोगों ने हुकूमती कारोबार बंद कर दिए, हुकूमत यस सर, उन्होंने हुकूमती चीजें खरीदना बंद कर दी, उन्होंने सरकारी चीजें, इंपोर्टेड चीजें खरीदना बंद कर दी। कहने का मतलब है कि इतनी बड़ी ये तहरीक हो गई, इतनी बड़ी बड़ी तहरीक हो गई, जिसका मतलब आजादी नहीं था, इसका मतलब सिर्फ खिलाफत को बचाना था और मक्का और मदीना को बचाना था। लेकिन देखते देखते ये तहरीक इतनी बड़ी हो गई कि लोगों को ऐसा महसूस होना शुरू हो गया उस वक्त, सब कॉन्टिनेंट के लोगों को, कि यार ये यस सर, तहरीक जो है ना, ये इंग्लैंड रूल को भी ले जाएगी, ब्रिटिश रूल को, ब्रिटिश के इक़्तिदार को भी ले जाएगी, और यहाँ से ब्रिटिश रूल एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यस सर, ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स के ऊपर स्टार्ट की हुई मूवमेंट थी, वो इतनी बड़ी हो गई कि ऐसा फील होना शुरू हुआ था कि जो काम 1857 में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं कर सकी, शायद वो काम ये तहरीक खिलाफत कर दे, यस सर, शायद ये काम तहरीक खिलाफत कर दे, क्योंकि इतना जोर था इस तहरीक का, इतनी ज्यादा ये मूवमेंट थी, इतना जोर था इसका कि ब्रिटिश रूल डगमगाना शुरू हो गया। यानी ब्रिटिश रूल का सब कॉन्टिनेंट में जो इक़्तिदार था वो डावाडोल होना शुरू हो गया, और ये फील किया जाने लगा कि बस हो सकता है ब्रिटिश रूल यहाँ से चला जाए। ठीक है, तो इसलिए इसको मैं बड़ी इंपॉर्टेंस देता होता हूँ इस खिलाफत मूवमेंट को, कि खिलाफत मूवमेंट वाज वन ऑफ द पॉइंट्स व्हेन इट वाज बीइंग फेल्ट, ये फील किया जाने लगा कि शायद ब्रिटिश रूल खत्म हो जाएगा और सब कॉन्टिनेंट को आजादी मिल जाएगी, ब्रिटिश रूल से, ब्रिटिश एम्पायर से आजादी मिल जाएगी, और वो आजादी मिल जाएगी 1919 में या 1920 में या 1921 के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, यस सर, तो ये इसलिए इसको हम पढ़ते हैं, और इसका हम लोग एक और लिंक जोड़ने की कोशिश करते हैं कि देखें ये तहरीक चलाई थी, क्या हिंदुओं ने चलाई थी? नो सर, किसने चलाई थी? मान, मुसलमानों ने। तो मुस्लिम्स हैव द एबिलिटी, मुस्लिम्स हैव द एबिलिटी टू ओवरथ्रो एनी रूल, किसी भी इक़्तिदार को, किसी भी रूल को खत्म करने की पावर रखते हैं मुसलमान, स्पेशली व्हेन दे फील एनी रिलीजियस सेंटिमेंट्स। जब मजहबी सेंटिमेंट दाखिल हो जाए किसी भी तहरीक में, मुसलमानों की किसी भी काम में मजहब को दाखिल कर लिया जाए, तो वो काम मुसलमान बहुत फौरन से कर लेता है। बात समझ आ रही है? यस सर, यानी मुसलमानों ने के लिए जो मजहबी मजहब है, जो रिलीजन है सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों के लिए, ये बहुत अहम है, ये बहुत अहम है। ठीक है, तो उसका हमने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखी है कि जब तहरीक खिलाफत हुई, खिलाफत को बचाने के लिए, मक्का और मदीना को बचाने के लिए, तो उसमें इतना जोर आ गया, इतना जोर आ गया कि ऐसा फील हुआ कि यार ये ब्रिटिश एम्पायर जो है ना, ये टूट जाएगी, अब ये सब कॉन्टिनेंट से कम अज कम भाग जाएगी, निकल जाएगी, मुसलमान इसको भगा देंगे यहाँ पर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या,
जी, क्या लिखा है मैंने? खिलाफत was abolished by Muhammad Kamal Pasha.